we should know why we are here. So we are here to celebrate 15th of August 2023, the Indian Independence Day. And this is the 77th Independence Day which we are celebrating after completing 76 years. Right? So we all should know those facts. Always I repeat this thing on every 15th of August that there is a difference in flag hosting on 15th August and 26th January. I think the older students might be aware, or everyone is aware of that? सब लोगों को पता है? What is the difference between 15th August flag hosting and flag furling on 26th of January? So अभी जिन लोगों को नहीं पता है, you must have noticed that sir, me and Adil sir, we all raised the flag to a height. हमने उसको नीचे से ऊपर लेके गए. So this is because to mark independence. हमको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी, तो हमारा झंडा ऊपर गया था और उसके बाद लहराया था. So that's the beauty of this day, the specific thing which is there for the flag. And whereas on 26th of January, the flag remains at the top of the post. सबसे ऊपर होता है वो, और वहीं से उसको सिर्फ लहरा दिया जाता है, because already आज़ादी मिल चुकी थी. Because 26th of January marks the formation of constitution. Okay, so with this I think there's not much to speak for me. I have not prepared any speech. Rather, the only thing is that we should have those facts checked on every day, whatever it is. Few facts are being shared by Asad sir, who is the creative team member of our academy. He shares a lot of facts that this is this day, so and so day, which we don't know. But these days, like 15th of August, 26th January and others, these are very important and we should actually dig out things. जैसे कि आपके exam point of view से भी it's very important कि आपको ये जानना चाहिए what is the theme of this 15th August. This might be a question in your NDA exam कि 15 अगस्त 2023 की theme क्या है? Anybody knows? What is the theme of 15th August 2023? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो थीम बनाती है हर एक ओकेजन्स के लिए. दिस माइट बी अ क्वेश्चन, ये प्रीवियसली आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम्स में, सीडीएस में, एनडीए में, इन सब में आ जाते हैं ये, है ना. तो ये जाके आप लोग एक बार सर्च करिएगा क्या है आज की थीम. इंडिया फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, छोटी सी थीम है. अगेन एवरीवन विल रिपीट विद मी, इंडिया फर्स्ट, नहीं इंडिया फर्स्ट भी तो बोलो. ओके, इंडिया फर्स्ट, always first, and we will remain first. ये मैंने ऐड किया है. Okay, so theme is only India first, always first, and we are now celebrating, as everybody knows, आज़ादी का अमृत महोत्सव. सबको पता है बात? Because अभी तो कॉलर ट्यून भी वही लग गई है कल परसों से. Whenever you are calling anybody, I am sorry प्रथम guys, you are not having phones, तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी. So you were hearing this caller tune also for Azadi Ka Amrit Mahotsav. So this was started last year in fact 2021. Shri Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister, he started with this Azadi Ka Amrit Mahotsav, in which he took this initiative that all the people of country, they should respect national flag, they should hoist this national flag at their homes. पहले ये सब अलाउड नहीं था, है ना. देयर वर सर्टेन वेरी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज फॉर द फ्लैग. अभी ये इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से अलाउ हो गया था दैट आप उसको अपने घर पे फहरा सकते हैं. बट अगेन यू हैव टू रिस्पेक्ट. ऐसा नहीं आपने फहराया और अगले दिन वो नीचे कूड़े में पड़ा है या कहीं इधर उधर पड़ा है. ज़मीन पे नहीं आने देना है फ्लैग को. कहीं भी रास्ते में भी दिखे, यू शुड पिक इट अप एंड देन कीप इट इन अ सेफर साइड और टेक इट अवे विद यू. ऑलराइट, तो इस साल वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो एंड हो जाएगा. आई थिंक उसकी 15 अगस्त 2023 डेट थी, राइट. सो आज के दिन भी आई थिंक देयर इज़ सम इनिशिएटिव कि आप तिरंगे के साथ में सेल्फी लीजिए, और एक कोई वेबसाइट है आई गेस, वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं आप लोग. तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, बट येस इफ़ यू वांट टू डू यू कैन. ओके, सो ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच. जय हिंद.
Now I would request Anurag sir, Group Captain Anurag Rai sir, to share few thoughts, some good motivating speech with the kids. Thank you. Thank you so much. Good morning, everybody. Good morning, sir. With freedom in our minds, zeal in our hearts, and strength in our actions, let us salute India, the great country, on this Independence Day. We have come a long way, and it is you, the younger people, who have to carry it forward. It is a relay race. At least mine, I have lived a part, and the younger people will have to carry on. So it is the quality of you all which will make the difference in our nation. Try to realize this. It is your quality, what kind of citizen you are, and thereafter what kind of Fauji you are, that will make a difference to this country. So we hand over the baton to you. Remember that. In that same league and same context, I wish to, on this occasion, last year also and year before, I make it a point to remind us all, including us, everybody here, and all citizens, हमें ये याद रखना है, हम लोग सब अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग रहते हैं. हमें सब पता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, है कि नहीं? मगर हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य, उनके प्रति हम थोड़ा सजग नहीं रहते, तो उसको दोहराना हमारा कर्तव्य है. तो इसको ध्यान से सुनिएगा. और उसे मैं, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 5151A में ये बताया हुआ है. आर्टिकल 12 to 35 में हमारे अधिकार हैं, और 51A में हमारे कुछ कर्तव्य हैं. तो हम सिर्फ कर्तव्यों को छू रहे हैं, अधिकार तो आपको सब पता है ना? सो मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा. ये एक याददाश्त है, आप इस पे थोड़ा सा चिंतन और मनन करिए और इसको अपने ज़हन में सबसे ऊपर रखिए, जिससे कि हम जो भी एक्शन करें जीवन में वो इससे गाइडेड हो, इसके विपरीत कभी ना हो. ओके, सो गिव मी जस्ट 5 minutes as fast as I can read, but you please think over it. You are all thinking people, सबके बुद्धि है, इंटेलिजेंट हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. प्रथम कर्तव्य, आवाज़ आ रही है? कुछ ऐसा लग रहा है कि धीरे जा रही. प्रथम कर्तव्य यह है कि समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना होगा और साथ ही उसको सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा, और इसके साथ ही तिरंगा व राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना होगा. जिन गौरवपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों ने हमें आज़ादी दिलाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका आदर व सम्मान करना होगा. राष्ट्र की एकता, तीसरा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर और गौरवपूर्ण सम्मान करना होगा. चौथा, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना होगा. पांचवा, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना होगा. छठवां, प्रत्येक नागरिक को एक समान आदर एवं सम्मान देना एवं उसको प्राप्त अधिकारों को सम्मान करना होगा. अभी तक समझ आया? सातवां, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि हेतु उनको प्रयत्न करना होगा. ये अभी 7 हुए हैं, टोटल 11 हैं. कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे. वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास हेतु जीवन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना होगा.
Take scientific temper in your approach. Ninth, भारतीय सार्वजनिक संपत्ति की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करना होगा. पब्लिक प्रॉपर्टी यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, उसे हानि न पहुंचाना होगा. राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना होगा. और लास्ट, यह प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक निशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं. So these are our duties. We should be alert, and I hope it makes sense. I'll request it should be put up in the WhatsApp group also, so that they can read in their own time and make the amends. With these few words, I will not bore you anymore. And once again, thank you everybody and congratulations to all. Jai Hind. हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आप सभी ने कई बार सुना होगा. सो दिस टाइम अभी मैं फिर से प्रिपेयर नहीं हूँ, है ना. सो वैसे भी हमारे पास ट्रीजर ऑफ नॉलेज है ऑलरेडी. ओवेस सर एंड कैप्टन सर, उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता दिया है अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना. सो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है. सर ने एक एक करके आपको पॉइंट भी किया है. लास्ट टाइम भी सर ने वो सारी चीज़ें हाईलाइट की थी कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज़ को भी जानें, है ना. सो बहुत सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं, लाइक आपको फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, हमारे नेशनल एंथम का, है ना. जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका हमें रिस्पेक्ट करना है. सो बाकी आपको इतना नॉलेज मिल चुका है. सो व्हाट टू से सर. ये भी कह रहा है चुप हो जाओ. इसकी वजह से हो रहा है. अच्छा, हो सकता है सर. चलिए दिस टाइम जी. नहीं नहीं, इसकी तो ज़रूरत है. हेलो. सो मेरी हॉबी लिखना भी है. सो मेरी एक पुरानी पोएम है जो मैंने लिखी थी. सो आज मैं उसे ही सुनाना चाहूँगी आप लोगों के सामने. शायद कई लोगों ने वो पढ़ी भी होगी कभी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टाफ ने. सो तो ये मैंने खुद पर ही लिखी थी, है ना. सो इसका टाइटल है स्तब्ध हूँ मैं, मौन हूँ मैं. ठीक. सो आई एम स्टार्टिंग. स्तब्ध हूँ मैं, मौन हूँ मैं, फिर सोचती हूँ कौन हूँ मैं. इस मर चुके समाज की रूह के पासबान सी, कठपुतली के नाच सी गौण हूँ मैं. क्यों स्तब्ध हूँ मैं, क्यों मौन हूँ मैं. मन की मैंने बात रख दी, समक्ष हसरतों की किताब रख दी. तमन्नाओं पर व्यंग करके हंसकर यूँ डोलते हैं. रिवायतों को जोर देकर, दो की मेरी चार कहकर बेबाक ये सब बोलते हैं. शब्दों की पराकाष्ठा पार कर सब सीमाएं तोड़ते हैं. मेरे गुणों को अवगुण कहकर तराजू में तोलते हैं. फिर भी स्तब्ध हूँ मैं, मौन हूँ मैं. अपनों की दरकार है मगर फिर भी सबसे महरूम हूँ मैं. बेड़ियाँ जो बंधी है पगों पर उनसे स्तब्ध हूँ मैं. मेरे अल्फाजों की बंदिश पर मौन हूँ मैं. अंधे समाज पर चुप्पी साधे खड़ी आखिर कौन हूँ मैं. क्यों स्तब्ध हूँ मैं, क्यों मौन हूँ मैं. सो दिस इंडिपेंडेंस डे हम आज़ाद तो हो गए हैं, हमें अपने थॉट्स को भी फ्रीडम देनी है ना. मॉडर्न होने के साथ साथ हमें अपने जो हमारे फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ में भी मेंशन है कि हमारी अगर सामाजिक जो एक्टिविटीज़ है, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें अपनाना है ना. मॉडर्न कपड़ों से नहीं, सोच से भी होना है. सो दिस इंडिपेंडेंस डे आपको ये भी इम्प्लीमेंट करना है. ओके, सो थैंक यू सो मच. तो आखिरस पे बह यी वनान कि अस पज़ पन्निस युस सोन तिरंगा छ अत पज़ इज्जत करन और अस पज़ पन्ने देशक रक्षा करन यिथ कन्न सन बॉय छ बॉर्डरस पे रक्षा करान. बाकी वसलम. बहुत अच्छा, वेरी गुड.